आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम, और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। आज का ये दिन करते हैं तेरे नाम, और शुक्रिया के साथ करते हैं सलाम। विश्वास तो है यही कि तू है यही, हम हैं जहाँ वही, बरसे महिमा तेरी। यीशु तू है महान। Praise the Lord, Church. Welcome to our online church service today, Sunday, 23rd of August. I would like to start with the encouraging Bible verse taken from Isaiah chapter 41, verse 10. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. It's basically telling us that God is always with us, no matter what you're going through. That's a promise. Whatever you're facing this week, remember Isaiah chapter 41, verse 10, and claim it for yourself. Let us bow our heads and pray. Heavenly Father, I come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Lord, we thank you for this wonderful time to praise and worship your name. Lord Jesus, give us the grace to hear your voice and the strength to continue working for your kingdom in this time of pandemic. Grant us the strength to rebuild when all seems lost. Keep us strong in faith, hope, and love. For you have promised us, never will I leave you, never will I forsake you. Lord, I pray for the online service for today. Whatever is prepared, Lord, let your grace, anointing, and power be filled in the word. Open our ears, O Lord, to hear your word and know your voice. Speak to our hearts and strengthen our wills. Touch the people who will be listening to this preaching. Lord, I take victory in your mighty name. In Jesus' mighty name I pray, amen.
Good morning, church. Here are the announcements for this week. We are still in level 3 restriction until midnight Wednesday, August 26th, and gatherings of more than 10 people are not permitted. Hopefully the government eases restrictions from this week so that we can resume normal services in our church from next Sunday. These are trying times for some families as people are either working reduced hours or facing job losses. Please pray, especially for those facing a uncertain future at work. Stay safe, everybody. Father's Day will be celebrated in church on Sunday, September the 6th. Men's Fellowship will conduct the service. Lunch will be provided by the ladies. Music training for Father's Day choir has been postponed until further notice due to level 3 restrictions. If restrictions are lifted this week as expected, then music training will take place next Saturday and after the morning service next Sunday. Men's will be notified of time via the Viber Men's Fellowship group. बार दिन ये आए, बार दिल ये गाए, बार दिन ये आए, बार दिल ये गाए, तू जी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू।
प्रभु की जय। प्यारे दोस्तों, सभी को स्वागत है मसीह यीशु के नाम से एक बार फिर प्रॉमिस लाइफ अनुग्रह असेंबलीज ऑफ गॉड के द्वारा। और आज हम जानते हैं कई लोग हमारे जो चर्च के मेंबर हैं सुनते होंगे, चुन किए होंगे आज हमारे प्रोग्राम को। और जितने भी और हमारे दोस्त रिश्तेदार दुनिया भर में जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, सभी को आज हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। जबकि यहाँ ऑकलैंड में लॉकडाउन है, ये दूसरा सप्ताह है और हम लोग ऑनलाइन में कर रहे हैं प्रोग्राम। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम धन्यवाद देते हैं आप सभी के प्रार्थनाओं के लिए। और हम जानते हैं कि ना परमेश्वर के जो काम है वो रुकेगा नहीं। दुनिया रुक जाएगी मगर परमेश्वर काम चलता रहेगा, और किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी तौर तरीके से। और आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि उसका वचन जो है वो सत्य है, और उसका जो वचन है दुनिया के चारों दिशा में जाता है। And we are so grateful for the Lord that He is working among us and through us and for us. And there is no distance in prayer, and there is no resistance for the gospel. All the other work may be stopped, but Jesus' work will keep on going till He comes. Praise the Lord. और आज हम लोग प्रार्थना के विषय में देखेंगे। जिस तरह से लास्ट वीक जो था, हमने प्रभु यीशु मसीह का जो कथन था जिसने प्रार्थना करना सिखाया, उसके विषय में बातचीत किया है। आज हम देखेंगे जो छठवां प्रार्थना जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया करने के लिए, और हम जानते हैं ये हमारे और आपके लिए भी है। The sixth prayer that Jesus taught, Matthew chapter 6 verse 13, it says, and lead us not into temptation but deliver us from evil, for thine is the kingdom and glory forever and ever, amen. और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। तो आज हम लोग देखेंगे हमें परीक्षा में ला परंतु बुराई से बचा। इतने शब्दों के द्वारा हम लोग आज प्रभु के वचन में और गहराई में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम शुरू करने जा रहे हैं इस समय प्रभु के वचन को। हम लोग जानते हैं कि ये जो वचन दो धार तलवार से भी चौका है। प्रभु का वचन जो है हमारे लिए है, सारे कौमों के लिए, सारे मजहब के लिए है। और जो कोई उस पर ईमान लाता है वो नाश ना होगा परंतु आनंद जीवन पाएगा, प्रभु के वचन हमसे कहता है। और हम जानते हैं कि उसके वचन जो है हमारे और आपके लिए है। और वो हमें अपने वचन के द्वारा ज़िंदा रखता है, अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है, अपने वचन के द्वारा हमें चलाता है। और उसके वचन के द्वारा हमारे पास एक आशा है। और हम जानते हैं कि हम सब आशावादी हैं, क्योंकि प्रभु में रहने से हम जानते हैं कि हमारा जो मुकाम है, हमारा जो मंजिल है, हमारा जो डेस्टिनेशन है, उसको हम पार करेंगे। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रह सकोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए, सबके लिए इंतज़ाम किया है रहने की जगह। और हम जानते हैं कि हमें इस दुनिया में जब तक है और उसके वचन में हम रहें और उसके सिखाने का जो विधि है उसको हम दूसरों को भी सिखाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। राइट। एक छोटा सी घटना के बारे में हम बात करेंगे आज। एक व्यक्ति था, वो था एथियस्ट, और वो नास्तिक था। और उन्हें कोर्ट में गया, जज के पास गया। उन्होंने कहा कि क्यों क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं और ईस्टर को मनाते हैं, और हमारे पास क्या हॉलीडेज़ हैं, हमारे लिए क्या हॉलीडेज़ हैं। देयर वाज अ एथियस्ट, ही वेंट इनटू द कोर्ट, आस्क्ड द जज, see, the Christians have Christmas holidays and they have Easter holidays, and what we have, we don't have day for ourselves. और ये जो जज था उन्होंने उसको देखा और कहा कि yes, you have a holiday and it is April 1st, Fool's Day, all day, full day is for you. तो हमें दिखता है कि ना धर्मशास्त्र से कहता है कि द फूल सेड इन हिज हार्ट देयर इज नो गॉड। तो हम लोग जानते हैं कि ना परमेश्वर जो है वो हमारे दिनों को गिना है और जानता है कि ये दिन जो हमें दिया है उसमें हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी उपासना करते हैं, उसकी जय जयकार, उसकी प्रशंसा हम हर दिन, हर शाम, हर घड़ी करते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। राइट। हम लोग आज अपने जो कथन है उस पर जाएंगे। और हम देखता है कि ना प्रभु यीशु मसीह चेलों को सिखाया, भले प्रार्थना पिता से ये करें कि पिता हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा।
तो हम लोग जबकि इस दुनिया में रह रहे हैं, हम परीक्षा में ज़रूर पढ़ेंगे। और ग्रीक ट्रांसलेशन ये हमसे कहता है कि फादर आई आस्क यू नॉट टू ब्रिंग अस इनटू टेम्पटेशन एट एनी पॉइंट इन टाइम। और ग्रीक में ऐसे अनुवाद है कि ए पिता, हम आपसे चाहते हैं कि हमें परीक्षा में ना लेकर आएँ कोई भी समय हमारे ज़िंदगी में। और तुम देखता है कि जब हम लोग सोते हैं, सुबह जागते हैं, तो हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को डालते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमें अगुवाई कर ये दिन भर। और हम नहीं जानते हैं कि ये दिन में कैसा अनुभव हमारे साथ होगा। Right, when we wake up in the morning, we put our hand in God's hand and ask Him, lead us through the day, because we don't know what experience may come. तो इस तरह से हम जानते हैं कि हमें प्रार्थना इसीलिए करना है कि हम नहीं जानते हैं कि अगला घड़ी हमारे साथ में क्या हो सकता है। तो हम जानते हैं ये प्रेयर जो रिक्वेस्ट है, प्रार्थना मांग जो है, ये है कि परमेश्वर हमें मदद करता कि हम परीक्षा में गिर न जाएं। तो हम जानते हैं कि परीक्षा जो है ये अपने आप में पाप नहीं है। टेम्पटेशन इज नॉट इन इट सेल्फ अ सिन, बट व्हेन वी फॉल इनटू टेम्पटेशन देन इट बिकम सिन। जब हम लोग परीक्षा में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो हमारे ज़िंदगी में पाप बन जाता है। परीक्षा जो सिर्फ एक दरवाज़ा है। और हम जानते हैं कि ना प्रभु यीशु मसीह हमें सतर्क कराता है कि हम हर समय परमेश्वर से मांगें कि हम ऐसी स्थिति में न जाएं ताकि हम परीक्षा में पड़ जाएं और शैतान हमारे ऊपर कब्जा पाए। तो हम लोग सभी जानते हैं कि परीक्षा जो है हमारे जीवन का भाग है, या तो हमारी ज़िंदगी में आते रहेगा। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग सब इम्तिहान करते हैं, when we go to school and we had to have a test, और परीक्षा में मिलता है ताकि बच्चों का जो है या कोई भी अध्ययन करता है उसको अंत में जो टीचर है उनको फैसला सुनाना पड़े कि ये बच्चा उस इम्तिहान में पास हुआ है कि नहीं। तो इसी तरह से हम जानते हैं कि जब हमारे ज़िंदगी में ना समस्याएं आती है और परीक्षा में आती हैं, ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन टेस्ट्स आर कमिंग, तो दैट्स इट क्वालिफाइज अस टू बी स्ट्रॉन्गर इन द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि परमेश्वर इसी तरह से हमारा भी इम्तिहान लेता है ताकि हम उसका जो वचन है उस पर खड़े रहें और शैतान को हम एक भी इंच मौका नहीं दें ताकि वो हमें गिरा सके और हमारे ज़िंदगी से खेल सके। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के ज़िंदगी में टेम्पटेशन आया है, ये जो परीक्षाएं आई है, और कई लोग उसमें गिर गए हैं और अपने ऊपर शराब को लेकर आए। और कई ऐसे लोग हैं जो टेम्पटेशन में पड़े मगर वो लोग उसमें से निकल आए एंड दे बिकम विक्टोरियस, विजेता को हासिल किया है। और हम लोग अगर देखेंगे जेनेसिस में जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया और परमेश्वर ने हव्वा को बगीचे में डाला, और आदम और हव्वा बगीचे में थे और परमेश्वर ने उनके गार्डन में बहुत सारे पेड़ पालो पौधे थे और फुलवाड़ी और फल फूल और ये सब खाते रहे। परमेश्वर उनको आज्ञा दिया था कि एक पेड़ का जो फल है उसको ना खाएं, मगर जो हव्वा ने उन्होंने देखा सर्प था एक पेड़ में और उन्होंने उसको लालच दिखाया। उन्होंने कहा कि ना कितना मीठा फल है, कितना स्वाद फल है, कितना अच्छा लगता देखने में। और फिर सर्प ने उससे कहा कि अगर तुम इसको खाओगे तो तुम्हारा नेत्र खुल जाएगा, तुम भले बुरा का ज्ञान तुम्हारे में आ जाएगा। और क्या होता है कि हव्वा ने शायद पेड़ को पहले कई बार देखी होंगी और उसके अंदर में एक लालच आ गया और हम जानते हैं कि उसके वजह से उन्होंने उस फल को खाई और अपने पति को दिया है और पति भी खाया। और हम जानते हैं कि ना ट्रेडिशन कहते हैं कहा गया है कि जब आदम ने उसको खाया, शायद आधा खाया, तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ का फल है। उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर ने जिसको मना किया था और बगीचे के जो बिछवाड़े फल है, ज़िंदगी का जीवन का फल है, वो पेड़ है उसका फल है। और हम ना कहते हैं कि वो
खाने से रुक गया और इसीलिए उसके जो गले में जो एक गट्टा सा है वो एडम्स एप्पल कहते हैं। और इसका कोई परिणाम नहीं है, मगर हम जानते हैं कि लोग इस तरह से कहते हैं। तो एनीवे हम लोग जानते हैं कि आदम ने और हव्वा ने जो ये फल को खाया, परमेश्वर के वचन को निंदना किया, उल्लंघन किया। हम जानते हैं कि बात यह है कि वो लोग परीक्षा में पड़े और परीक्षा में असफलता हुए और गिरने के कारण से आज दुनिया भर में पाप है, गुनाह है। हम जानते हैं कि हम सब पाप के अधीन आ गए और हम जानते हैं कि सारे संसार के लोग पाप में पड़ गए। और अगर वो लोग अगर उस समय परीक्षा में ना पढ़ते, शैतान की बातों को ना सुनते, तो आज हम जानते हैं कि हमारे ऊपर ये जो मौत का फंदा है ये ना होता। और हम लोग देखता है कि मैथ्यू चैप्टर 4 में, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब वो 40 दिन 40 रात उपवास किया और शैतान उसके पास आया और उन्होंने उसको बहकाया और उसको परीक्षा में डाला और कहा कि तुम अगर इस पत्थर को कहोगे रोटी बन जाए, और रोटी बन सकती है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं मगर हर एक वचन से जीवित रहेगा। और फिर हम जानते हैं कि शैतान दूसरा बार उन्होंने मंजिल के ऊपर लेकर गया। उन्होंने कहा कि तुम अगर यहाँ से कूदोगे तो परमेश्वर हाथों हाथों में उठा लेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर को हम उसको टेस्ट ना करें, उसके परखें नहीं, राइट। तो हम लोग देखता है कि शैतान फिर उसकी हारी नहीं माना, उसको लेकर गया एक पहाड़ पर, उन्हें दिखाया दुनिया का विभाव को, पूरा सारे संसार को दिखाया। And he showed the world and he said, if you only bow down before me and I will give everything to you and you have all the authority over all the planet। दुनिया विश्व को दिखाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे सामने झुककर हमें वंदना करोगे तो ये सब तुम्हारे हाथों में आ जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि परमेश्वर को छोड़कर किसी के सामने हम झुके नहीं, उसके वंदना ना करें। तो इस तरह से हम देखता है कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन भोजन नहीं किया, भूखा था। और हम जानते हैं कि शैतान उसको उस समय आकर उसको क्या है टेस्ट में डाला, परीक्षा में डाला, मगर प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में न गिरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस तरह से हम देखता है कि शैतान हर एक को परीक्षा में लेकर आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह को शैतान नहीं छोड़ा तो हम जानते हैं हम और आप कौन हैं। और सभी की ज़िंदगी में ऐसे समय समय पर परीक्षाएं ज़रूर आएगी। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमसे कहता है कि हम प्रार्थना करें, दुआ करें कि कहें, हे मेरे पिता परमेश्वर, हमें परीक्षा में ना लाओ परंतु बुराइयों से बचाए रख। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम जानते हैं कि हमें प्रभु के पास नज़दीक में रहना है। और हम जानते हैं कि हमें शैतान को मौका नहीं देना है, किसी और को मौका नहीं देना कि हमें वो ऐसे फंदों में फंसा ना डालें। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखता है कि परीक्षा हमारे और आपके लिए भी अच्छा है, हमारे जो मसीह ज़िंदगी में बढ़ोतरी के लिए। और हम एक समय वचन को पढ़ेंगे। ये हमें मिलती है जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 और 3। याकूब की पुस्तक अध्याय 1 पद 2 और 3 हम पढ़ेंगे। कहता है, ए मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, या जानकर कि तुम्हारे विषय के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस तरह से हम देखता है कि हम लोग ना परखे जाएंगे तो हम जानते हैं जब परखे जाएंगे तो हमारा जो धीरज है, हमारा जो मसीह में धीरता है ना, उसमें हमारे और मजबूती आ जाता है। और तो हम लोग देखता है कि ना परमेश्वर जो है वो हमें सामर्थ्य देता, शक्ति देता है और हमारे ज़िंदगी में होकर हमारे साथ में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। राइट, हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ी में कहता है बोले माय वेस्ट में
कहता है कंसीडर इट ऑल जॉय माय ब्रदर व्हेन यू एनकाउंटर वेरियस ट्रायल्स, प्रेज द लॉर्ड, काउंट इट ऑल जॉय, प्रेज द लॉर्ड। ये सब हमारे आनंद के कारण है जब हम लोग ऐसे स्थिति में जब आ जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि जो मजबूत मसीह है वो शैतान को छू नहीं सकता है, और हम जानते हैं कि जेम्स चैप्टर 4:7 कहता है कि भले सबमिट योर सेल्फ टू द लॉर्ड एंड रेजिस्ट द डेविल एंड इट शैल फ्ली, प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपो और शैतान को गुड़को तो वो कोसों दूर भागेगा हमसे, प्रेज द लॉर्ड। तो इस तरह से हम जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन आता है, टेस्टिंग आता है, परीक्षाएं आती है, और इससे हम लोग भागे नहीं और शैतान को भगाएं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा बात हम देखता है कि ये जो टेम्पटेशन जो है खासकर ये हमारी ज़िंदगी में आता है शैतान की वजह से। इसीलिए कहता है कि डिलीवर अस फ्रॉम इवल, राइट। दुष्ट जो है, शैतान जो है, वो उससे हमें वो जो है हमें गिराना चाहता है, वो हमें फंसाना चाहता है, और वो हमारी ज़िंदगी में बर्बादी लाना चाहता है। हम जानते हैं कि शैतान इस दुनिया में है, और वो हमारे ज़िंदगी में ना समस्या खड़ा करता है, और ताकि हमारे हर एक जो कार्य उसमें समस्या डालता है। एंड वी नो दैट Satan is against the Lord's work and he will come against every time, but we have to stand firm। और हम जानते हैं कि शैतान जो है हमारे पाँव के नीचे है, उसके ऊपर हम कब्जा को रखने वाले हैं। और अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट देखते हैं, जोसेफ जो व्यक्ति था, नौजवान, उन्होंने जब अपने मालिक के घर काम कर रहा था, उसके जो पत्नी थी उसको रेप करना चाहिए, मगर उन्हें छुड़ा कर भागा, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए धर्मशास्त्र से कहता है फ्ली फ्रॉम सिन, राइट, पाप से हमें भागना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक समय की बात है, एक लड़का था, उनके माँ जो है उसको कई बार मना करने से वो गया नहा कर आया, और जब वो घर पर आया उसके सर के बाल से भीगे हुए थे, कपड़े भीगे हुए थे, और उन्होंने कहा कि बेटा मैंने कहा कि तुम्हें पानी में ना जाए, और तुमने क्या ये ना, आई टोल्ड यू नॉट टू not to go in the water, and you have you got your bathing suit on, bathing suit on, है ना। तो कहता है कि मम बोले when I went there I can't help it, बोले ना, जब नदी के पास गया, पानी के पास गया, तो मैं इसको रोक नहीं सका, और इसीलिए मैं ना करा गया। और उन्होंने कहा कि तुम और ये जो बैदिंग सूट पहना है, और कहा कि बोले हम जब जा रहे थे तो मैंने लेकर का ये ना, आई टुक दिस बिकॉज आई थॉट इन केस आई गेट टेम्प्टेड, ना शायद मुझे ये परीक्षा में आ जाओगे तो ना, तो हम इसको पैर कर ना लेंगे। तो हम लोग देखता है कि ना पीपल कभी ना लोग ऐसे हैं कि दे आर प्रिपेयर्ड टू गेट इनटू टेम्पटेशन, एंड सो हम लोग देखता है कि इंसान को हमें ना ज़रूरी है कि हम जो शैतान का जो वजह है ना, जो हमें फंसाना चाहता है, गिराना चाहता है, उससे हमें बच कर रहना है, प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए हमें रास्ता बनाना नहीं है, उसका रास्ता बंद करना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, राइट। क्यों हमें शैतान से बचना है? क्योंकि हमें ना ये शैतान जो है हमें गिराता है, उससे हमें बचाव में रहना है। इसीलिए कहता है कि बोले डिलीवर अस फ्रॉम इविल ना, प्रेज द लॉर्ड। हमें परीक्षा में ना, परंतु बुराई से बचा, प्रेज द लॉर्ड। हमें बचना है, हमें बच कर रहना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ना धर्मशास्त्र कहता है शैतान जो है वो चोर के नाई, चोरी करने, नाश करने, घात करने के आया, मगर प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें आया जीवन देने और जीवन बहुतायत का। शैतान जो है ना धीमा कदम से आता है, चुपके से आता है, और उससे हमें बचना ज़रूरी है, प्रेज द लॉर्ड। एंड वी नीड टू प्रे टू गॉड, लॉर्ड डिलीवर अस, प्रेज द लॉर्ड। डिलीवरेंस की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि हमें जैसे ना बच्चों को हम लोग बचाते हैं आग से और एक्सीडेंटों से बचाते हैं, मोटर गाड़ी क्रॉस करते हैं उसको, उससे हम लोग बचाते हैं। और हम लोग देखता है कि शैतान जो है वो हमें
बुराई की ओर लेकर जाता है, मगर हमें हर समय सतर्क रहना है। धर्मशास्त्र से कहता है बोले हम कबूतर के नाई होशियार रहें और सर्प के नाई बुद्धिमान रहें। तो हम जानते हैं कि बुद्धिमानी से हमें काम लेना है। दुनिया में रह रहे हैं, वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड। वी नो द टेम्पटेशंस ऑल अराउंड अस ना, ये जो परीक्षाएं हमारे इर्द गिर्द रहता है और हमें इसमें से पार लगना या पार होना ज़रूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, ग्लोरी टू। तो हम जानते हैं कि ना कैसे हम लोग बचेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम इस तरह से प्रार्थना करो और कि हम परीक्षा में ना पड़ें और परमेश्वर हमें हर एक बुराइयों से, हर एक जो गंदगी, हर एक शैतानी हरकतों से बचा के रखे। प्रेज़ द, हर एक दिन का ये प्रार्थना हमारा है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जब मजबूत रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु में हम अटल रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो भी तभी हम ना प्रभु में मजबूती से हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि प्रार्थना एक बात है, फास्टिंग हम लोग करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर के करीब रहेंगे, नज़दीक रहेंगे और उसके बचाव में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके लहू हम अपने ऊपर ढापे रहेंगे, तो हम जानते हैं कि शैतान हमें छू नहीं सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए हाँ, प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें हर समय हर घड़ी कि प्रभु हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराइयों से बचाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इन्हीं बातों के द्वारा आज हम सभी से ये कहेंगे कि हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं और हम जानते हैं कि समय समय पर हमारी ज़िंदगी में अड़चनें आएंगी, समस्या आएंगी और हम जानते हैं परीक्षा आएंगी। इससे हमें बचा रहना बहुत ज़रूरत है। जब हम लोग परमेश्वर काम में व्यस्त रहेंगे और उसका जो वचन पर हम लोग चलेंगे, डट कर चलेंगे, तो हम जानते हैं कि हमारे पास समय नहीं रहेगा और ये परीक्षा में जाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, राइट, वी हैव टू गार्ड आवरसेल्फ, praise the Lord, so that Satan can't touch us. Praise the Lord. Cover us with your precious blood. We need to pray to God. Praise the Lord. अल्लाह, इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे। Let's all pray. प्रभु जी, धन्यवाद आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए मेरे परमेश्वर, आज के वचन के लिए। ये वचन मेरे परमेश्वर आज हमारे दिलों में, दिमाग में रहे मेरे प्रभु जी। हम जानते हैं कि दुनिया के अंत के समय में हम रह रहे हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, हम जानते हैं नाना प्रकार की समस्याएं हमारी ज़िंदगी में आएगी और इससे हम परमेश्वर बचा रहे हैं और आपके मदद से और आपके सहयोग से पवित्र आत्मा हर एक मसीहों के साथ रहना, घेरा लगा दे उनको मेरे परमेश्वर, ताकि शैतान उनको छू ना सके। प्रभु धन्यवाद आपके दया, आपके प्रेम, आपके आशीष के लिए। ये प्रार्थना महान मुक्ति अता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा सवेरा तेरे सिवा है न कोई मेरा, तू ही